This is Dr. Meena Sahai, retired professor of physics of Ranchi Women's College. This is for physics honors students, solid state physics, lattice vibrations. We note that a lattice is a regular arrangement of points in space. The crystal structure is formed when an atom or group of atoms, known as bases, is attached to each lattice point. Any atom at the lattice point may be regarded to be connected to all the nearest neighbors by elastic spring. यहाँ देखिए, यहाँ ये जो points है, these are the lattice points, और ये दो lattice points के बीच में they are connected to the nearest neighbors like elastic springs. और यहाँ these are all elastics. Since all the atoms are connected to the neighbors by elastic springs, any excitation produced in any atom by external forces will be shared by all the atoms. मतलब हम अगर एक किसी को भी हम excite करेंगे तो all it will be, because यहाँ elastic springs से सब connected है these lattice points, so all of them will be set into excitation and the crystal will vibrate as a whole. We first consider the crystal elastic vibration of a continuous homogeneous medium in one dimension. इसको करेंगे तब हम लोग ये crystal structure का समझ सकते हैं. तो we have elastic vibration of one dimensional continuous homogeneous medium. अब क्या है? Consider an element of a homogeneous isotropic elastic medium जिसका लेंथ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड. ये जो फिगर 2 है इसमें आप देख सकते हैं. व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड एन इलास्टिक स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड सो दैट द लेफ्ट एंड, ये जो ए है ये कहाँ शिफ्ट कर जाता है? ए डैश में. और कितना अमाउंट से? u इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एंड राइट एंड बी इट शिफ्ट्स टू बी डैश. सो ये u हो गया और ये आपका डेल्टा x यहाँ से यहाँ है. सो एंड दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स बी. सो एंड दिस इज u प्लस डी यू द डिस्प्लेसमेंट. The increase in length of the medium is therefore delta u and the longitudinal strain developed is Sx limit delta x tending to 0, delta u by delta x is equal to del by u by del by x, and this is equation number 1. A linear medium के लिए Hooke's law hold करता है, that is stress by strain is equal to C modulus of elasticity. This is by Hooke's law. If the force acting on the left hand face at x be fx, अगर फोर्स मेरा क्या है? fx है, तो क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया, सो fx डिवाइडेड बाय डेल्टा y डेल्टा z डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, दैट इज sx इज इक्वल टू c, या fx इज इक्वल टू c sx डेल्टा y डेल्टा z. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. Similarly, the force Fx plus delta x on the right hand face at x plus delta x, right hand phase हुआ यहाँ पर, तो at x plus delta x is given by Fx plus delta s is equal to c s x plus delta x delta y delta z, equation number 3. And then this force is towards the right. The net force क्या हो जाएगा? दोनों को subtract करेंगे. Fx plus delta x minus Fx is equal to c stress s c x plus delta x minus sx delta y delta z. This is equation number 4. If m be the mass of the medium and a be the acceleration produced, तो न्यूटन्स लॉ से क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड इक्वेशन नंबर 5. एक्सपैंडिंग दिस, ये जो आपका यहाँ पर है एस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टेलर्स सीरीज अबाउट द पॉइंट x, एंड इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो ऑर्डर को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और केवल फर्स्ट टर्म को लेते हैं, तो ये बन जाता है c डेबा u by डेबा x डेल्टा y डेल्टा z इज इक्वल टू एम ए, या c डेबा बाय डेबा x और u के बदले में क्या हो गया? डेबा u by डेबा x डेल्टा y डेल्टा z इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा d. सो क्या हो गया? c डेबा स्क्वेयर u बाय डेबा x स्क्वेयर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इज इक्वल टू m डेबा बाय डेबा t डेबा u बाय डेबा t. एंड ये फिर आपका आ जाता है
दिस गिव्स मी, ये जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेबा स्क्वेड यू बाय डेबा एक्स स्क्वेड इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय सी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेबा स्क्वेड यू बाय डेबा टी स्क्वेड। और हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये जो कांस्टेंट है रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, रो डिवाइडेड बाय सी डेबा स्क्वेड यू बाय डेबा टी स्क्वेड, इक्वेशन नंबर 7 and this equation number 6, and this, ये जो रो है m by this is the density, it represents the wave, and this equation 6 represents the wave equation for the amplitude of the elastic waves in a linear homogeneous elastic medium as a function of x and t. अब इसका सोल्यूशन है जो इक्वेशन 6 का, लेट द सोल्यूशन ऑफ दैट बी इक्वल टू u इज इक्वल टू u नॉट एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू u नॉट एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t माइनस kx, where 2 pi by lambda is equal to k, and this k, ये जो आपका है, दिस इज नोन एज द वेव वेक्टर और प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो ये जो मेरा इक्वेशन 8 है, दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो इक्वेशन 8 है, दिस रिप्रेजेंट्स a sinusoidal disturbance of angular frequency omega and wavelength lambda propagating along the x axis. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन t। तो हम लोग को क्या जाता है, डेबा स्क्वेड यू बाय डेबा एक्स स्क्वेड इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेड यू जीरो एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस के एक्स is equal to minus k squared u. This is equation number 10. This is with respect to x. हम लोग अगर डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और with respect to t, डेबा स्क्वेड u बाय डेबा टी स्क्वेड, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेड u जीरो एक्सपोनेंशियल i ओमेगा t माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेड u, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11. अब इसको, ये दोनों वैल्यूज 10 एंड 11 को इक्वेशन 6 में जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरा आ जाता है माइनस के स्क्वेड यू इज इक्वल टू माइनस रो बाई सी डब्ल्यू स्क्वेड यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाय रो इंटू के, अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 11, एंड दिस इज नोन एज द डिस्पर्शन रिलेशन, क्योंकि ये क्या रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी विथ माई वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ k जो है ये क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहाँ वेवलेंथ आपका आ जाता है, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज नोन एज माई डिस्पर्शन रिलेशन. अब फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होता है, द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द रेट एट विच अ पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट फेज एडवांसेस इन द मीडियम along the direction of wave propagation. मतलब कि जब वो प्रोपगेट कर